Hi students, this is CS Riya Jain and today we'll be talking about different doctrines of the company law and we'll be specifically seeing the doctrine of ultravires. So these are the heads that we are going to cover in today's video. We'll also see previous year questions and how do we answer that or in what flow the answer should be. So let's begin. So there are 5 different kinds of doctrines that we are going to talk about today. First is ultra vires. Ultra means beyond. Vires means power or authority. So any activity which is beyond the power or authority of the company and directors is called as ultra vires. Okay. Now, indoor management protects the outsiders against the company, and constructive notice is protecting the company against the outsiders. Alter ego is Alter ego and lifting of corporate veil both are exceptions to the principle that company has a separate legal entity. So alter ego is basically that company's other eye is the directors slash anyone who's managing the affairs of the company. And lifting of or piercing the corporate veil, no entity separate from the members ever existed. Okay. So now let's come to ultra vires. So before that, कंपनीज एक्ट एमओए एंड एओए अगर तीनों में कंपटीशन हो या तीनों बेसिकली एक दूसरे को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द अदर टू. ओके, so let's begin. Now what is ultravires? The companies act. So any act which is, as the name suggests, any act which is in contradiction to or outside the scope of the companies act will be ultravires the companies act. It is void and cannot be ratified. Okay. Otherwise, the MOA. So basically, MOA का सबसे important thing is the object clause. MOA defines the object clause of a company, and the company has to work within those boundaries of the MOA only. So any activity which is beyond the purview of object clause will be ultravires the MOA. Okay, this is also void and cannot be ratified. AOA basically talks about the bylaws and regulations of the company. So any activity done which is beyond those, that is ultravires the AOA. But the thing is, this can be ratified by calling a general meeting and passing a special resolution by the members if the activity is intravires the MOA and Companies Act provided. Now, as per the case law, Oakbank Oil Company, it was held that objects have to be specified. You cannot imply an object, but powers incidental to attainment of these objects can be implied. Now, again, in powers, there are certain powers which cannot be implied. Basically, these powers have to be specifically stated and it cannot be implied. So, what are those powers? Acquiring any similar business, agreement for partnership or sharing profits or joint venture or other arrangements, taking shares of other similar companies, shares of companies where such investment indirectly authorizes something which shall be considered ultra vires if done directly. So basically, अगर for example मेरी जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जो बेकिंग में है. सो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज इज कंस्ट्रक्शन. तो अगर मैं इस कंपनी में बेकिंग स्टार्ट करूँ तो वो अल्ट्रावायस हो जाएगा. करेक्ट. सो बट आई एम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जो बेकिंग कर रही है. सो इनडायरेक्ट ऑथोराइज हो रहा है मुझे, राइट, बेक करना. सो ये अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये पावर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए. तो ये 4 एक कैटेगरी है. इन दिस देर आर मोर 5, बट ये 4 एक कैटेगरी में आते हैं. अक्वायरिंग, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट दिस वे: एक्विजिशन, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, शेयर्स ऑफ सिमिलर, शेयर्स, अल्ट्रावायर्स. ठीक है, ये 4. फिर उसके बाद प्रमोटिंग और फाइनेंशियली हेल्पिंग अदर कंपनीज, sell and dispose of the whole of company's undertaking, use funds for political purposes, give gifts, donations, contributions for charities not related to specified objects. This is important, huh? Not related to specified objects. अगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो इम्प्लाइड में आ जाएगा. एक्टिंग एज श्योरिटी और गारंटर. सो अभी ये 5 को कैसे याद करेंगे? फाइनेंशियल हेल्प, सेल अंडरटेकिंग, political, charity, and surety or guarantor. Okay, so these are the 9 powers which are not implied. Now we'll talk about the effects of ultravires transactions. So first things first, it is void of initio. कोई भी ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रावायस है वो स्टार्टिंग से ही void होता है.
Now this point talks about कि if a company purchases property जो अल्ट्रा वायस हो रहा है, ठीक है, वो एक्टिविटी बेसिकली परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज बिकमिंग अल्ट्रा वायस, तो भी कंपनी का वो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा, रीजन बीइंग द फंड्स यूज्ड फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी आर कंपनीज ओन फंड्स, सो दैट्स व्हाई देन इट डज नॉट क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। अगर फाइनेंशियल हेल्प हुआ है इधर से उधर तो वो क्रेडिटर, बट अल्ट्रावायज एक्टिविटी के लिए हुआ है तो वो क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता है। फिर इंजंक्शन, एनी पर्सन कैन टेक इंजंक्शन इफ दे नो दैट द कंपनी इज गोइंग टू और इज ऑलरेडी डूइंग एन अल्ट्रावायज ट्रांजैक्शन, तो वो इंजंक्शन ले सकते हैं। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो इस पे ऑलरेडी एक केस लॉ है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जहांगीर आर मोदी वाला। सो बेसिकली अगर डायरेक्टर्स यूज द मनी और फंड्स ऑफ द कंपनी फॉर एन एक्टिविटी विच इज अल्ट्रा वायर्स और देयर पर्सनल बेसिकली ट्रांजैक्शन, तो जो थर्ड पार्टी है दे कैन आस्क द डायरेक्टर्स टू restore the funds of the company without making the company party to the suit. Okay, so that is personal liability कि जहाँ पे डायरेक्टर्स को फंड्स लाने पड़ते हैं कंपनी में फॉर एनी एक्टिविटी विच दे डिड, बेसिकली अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर हो गया अगर कोई एक्टिविटी। अभी सिर्फ दो वेज है जिसमें डायरेक्टर्स आर ऑथराइज टू मेक ग्रांट। एक तो वो ग्रांट का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू प्रमोट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, और दूसरा वो जो ग्रांट है दैट इज इंसिडेंटल टू कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, नहीं तो अलाउड नहीं है। नाउ कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ दो रीजंस होते हैं जिससे अलाउड होता है। एक तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय ने टॉर्ट किया है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट था, और दूसरा वो जो एक्टिविटी की है टॉर्ट में दैट इज अ पार्ट ऑफ एमओए, दैट इज अलाउड इन एमओए ऑफ द कंपनी। तो ये दो सिचुएशंस अगर मीट होती है तो फिर कंपनी विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज इट विल नॉट बी। Now, what are the exceptions to the doctrine? So basically, you've performed an activity जो इंट्रावायस है, the activity is intravious, it's just that उसको आपने परफॉर्म ठीक से नहीं किया, आपने उसको परफॉर्म इरेगुलरली किया, बेसिकली आपने जो प्रोसीजर होता है वो ठीक से फॉलो नहीं किया, तो वो आप रेटिफाई करवा सकते हो शेयर होल्डर्स से। दूसरा जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफिकली एमओए में मेंशन नहीं है, बट आपको कंपनीज एक्ट अथॉरिटी देता है टू कंडक्ट दैट एक्टिविटी, सो दैट इज ऑल्सो अलाउड। दूसरा, इट इज आउटसाइड द अथॉरिटी। नाउ इफ एन एक्टिविटी इज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर वो बाकी इंट्रावायज है सिर्फ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर है तो वो शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आप अल्ट्रावायस एक्टिविटी करते हो उससे अगर उसके बाय प्रोडक्ट बेसिकली या फिर उससे इंसिडेंटल कोई एक्टिविटी होती है तो जस्ट बिकॉज वो एक अल्ट्रावायस एक्टिविटी से का बाय प्रोडक्ट है वो उसको अल्ट्रावायस पहले से ही डिक्लेयर नहीं कर देता है। हाँ, अगर एक्ट में इसको भी प्रोहिबिट किया गया है तो अलग बात है, बट अगर इसको प्रोहिबिट नहीं किया है तो जस्ट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम एन अल्ट्रावायस एक्ट इट डज नॉट बिकम अल्ट्रावायस। So these were the exceptions. Now coming to the case laws. So in Re South Durham Brewery Company, it was held कि जो AOA है और MOA है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में पढ़ना होता है, एंड अगर MOA में कुछ नहीं लिखा है या एम्बिगुअस है बट AOA specifically mentions that, तो AOA can be used to clear that doubt, and it can explain the ambiguity basically in MOA. Okay. फिर एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, इसमें लिखा है कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अल्ट्रावायस इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। वी ऑलरेडी सीन अल्ट्रावायस द एमओए कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक है। बट हाँ, जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बट अगर इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है तो वो वहां पे चलता है, तो ये बाद में जाके दूसरे केसेस में ये हुआ था, ठीक है। ए लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर, नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि अगर आप चैरिटी या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स पे स्पेंड करते हो तो इफ इट इज अदर देन योर ओन ऑब्जेक्ट्स
देन यू हैव टू टेक प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर्स। अगर वो आपके ऑब्जेक्ट से अलाइन हो रहा है तो फिर वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना कंट्रीब्यूट करना है आप विदाउट द कंसेंट ऑफ मेंबर्स कर सकते हो। नेशनल प्रोविंशियल बैंक वर्सेस इंट्रोडक्शंस लिमिटेड। सो यहाँ पे इट वाज मेंशन कि अगर कोई भी लेंड कर रहा है टू कंपनी फॉर पर्पसेस अल्ट्रा वायर्स द एमओए, तो वहां पे लेंडर कैन नॉट रिकवर, क्योंकि वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता है, एज वी ऑलरेडी स्टडी, as we were talking about earlier, Jehangir R. Modi. So, यहाँ पे shareholder can compel the directors to restore to the company the funds that have been employed by directors in transaction that had no authority to enter into without making the company a party to the suit. ठीक है, ये हमने already बात कर ली। Now coming to past year questions. So doctrine of ultraviolet में December 2023 में 5 marks का एक question पूछा गया था। बाकी 2024 में इंडोर मैनेजमेंट में था एंड 2025 पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल था। So when we talk about those doctrines specifically, that time we are going to deal with those questions. Today we'll be seeing question number 1A from December 2023. So first reading the sub question so that we know कि हमको basically ध्यान कहाँ देना है। 5 marks का है, whether the contention of financial institution is refusing to subscribe to the issue of preference shares of company is valid. Okay, now we'll go to the case study. So Anil, Sunil, and Vaishali are close friends from a renowned business family. After doing their masters from IIM Ahmedabad, they decided to start e-commerce in commodities. However, they were not sure about the legal format in which they should start the business. On request, Messrs. So and so, firm of practicing company secretaries, advised them to form company limited by shares, being the best suitable device for running the business. जो मुझे लग रहा है relevant नहीं, I'm reading it very quickly. After complying with legal formalities, the company in the name and style of so and so was incorporated on so and so by 7 subscribers, including Anil, Sunil, and Vaishali, to the memorandum and AOA of the company with main object of carrying e-commerce in grains, grocery, and medicines throughout India. फिर registered office is situated in Pune, Maharashtra. Capital clause, अब ये important है हमारे लिए. Capital clause of MOA is authorized share capital of the company shall be 1 crores. AOA contain the capital clause as below. Authorized share capital of the company shall be 1 crores divided into 8 lakh equity shares carrying voting rights pari passu of rupees 10 each. So 80 lakhs हो गया basically. And 20,000 preference shares of 100 each. So ये 20 lakhs हो गया. So 80 plus 20, 1 CR. Company offered preference shares to the financial institution, its promoters, and group of individuals on which rate of dividend shall be 10% as per the term of issue. Financial institution refused to subscribe to the issue of preference shares on the contention that MOA is ambiguous as it does not authorize the company to issue class of preference share and hence the act of offering preference shares is ultra vires the company. So basically उसके आगे दूसरे सब क्वेश्चंस के लिए है, तो अपने लिए उतना ही है. So whether the contention of financial institution in refusing to subscribe to the issue of preference shares of company is valid. So ये हमने already एक case law में देखा हुआ है. This one, South Durham Brewery Company. So basically, articles of association can be used to explain the ambiguity contained in MOA, क्योंकि वहां पे AOA में specifically mentioned था 20,000 preference shares of rupees 100 each. तो वो ऑलरेडी मेंशन था. एमओए में सिर्फ 1 CR था, उसका बाइफर्केशन नहीं था. तो व्हेन यू रीड एमओए एंड एओए टुगेदर, तो कंपनी डज अलाउ टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स. सो बेसिकली एक्ट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स. ओके, सो अब हमको क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया है. हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट नाउ? सिंस इट्स अ 5 marks क्वेश्चन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अल्ट्रा वायर्स. कि अल्ट्रा वायर्स होता क्या है. सो एनी एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द पावर और अथॉरिटी, तो वो पूरा लिख दिया. फिर उसके बाद हमने ये लिख दिया अल्ट्रावाइज द कंपनीज एक्ट, अल्ट्रावाइज द एमओए, अल्ट्रावाइज द एओए, कैन नॉट बी रैटिफाइड, कैन नॉट बी रैटिफाइड, कैन बी रैटिफाइड. ये पूरा अल्ट्रावाइज का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया. उसके बाद वील बी राइटिंग के द फैक्ट्स ऑफ द केस और द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑलरेडी हेल्ड इन री साउथ दुर्हम ब्रूवरी कंपनी वेर इट वॉज हेल्ड सो एंड सो. तो उसका पूरा ये जो 2 लाइन्स है इसको आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एंड बेसिकली दिस वाज द मेन कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पे नोट किया है. सो आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे. एंड लास्ट में यू हैव टू मेंशन, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि पूरा अच्छे से लिख देंगे, पूरा अल्ट्रावायस लिख देंगे, बट लास्ट में उन्होंने जो पूछा है वो तो बोला ही नहीं. सो बेसिकली वी हैव टू मेंशन
Therefore, the contention of financial institution is incorrect. The activity is not ultraviolet. Okay, so that's how you're going to write the question. So that was it. Past year question be done hai. Now what, like just a rough conclusion of the entire video. So हमने पांचों डॉक्ट्रिन्स देखे, अल्ट्रावायरस, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्टर ईगो एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. फिर हमने अल्ट्रावायरस देखा, अल्ट्रावायरस द कंपनीज एक्ट, एमओए, एओए. फिर हमने ये देखा एज पर ओक बैंक ऑयल कंपनी, ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी स्पेसिफाइड बट इंसिडेंटल पावर्स जो है वो इम्प्लाई हो सकते हैं. और हमने वो भी देखा कि कौन से पावर्स इम्प्लाई नहीं होते. तो टोटल 9 पावर्स थे, 4 and 5 के सेट में हमने लर्न किए हैं. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, तो उसमें वो सब था, वॉइड ऑफ इनिशियो, इंजंक्शन, पर्सनल लाइबिलिटी एंड डेटर लेंडर, तो वो पूरा था. Then we saw the 4 exceptions to the doctrine. Then we discussed about the different case studies. So South Durham Brewery Company में MOA AOA वाला था कि they have to be read together. Ashbury Railway Carriage was के objects जो है उसके object clause के beyond नहीं जा सकते, वो ratify नहीं होता है basically if you go beyond the object clause. लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर में था कि if you are going basically donation जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, तो फिर आपको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा मेंबर से. नेशनल प्रोविंशियल बैंक में था कि क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता, उसका एक्चुअली ये था, इट वाज के अल्ट्रावायरस ट्रांजैक्शन के लिए अगर पैसे लेंड किए तो लेंडर कैन नॉट रिकवर. जहांगीर आर मोदी स्पोक अबाउट पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. So that was the doctrine of ultrawires. I hope this video helped you, and I'm going to see you in the next one. Thank you so much.